سرکٹ میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لوٹنا میں جماعت اہل سنت کی احتجاجی ریلی سید ظفر علی شاہ نے ریلی کی قیادت کی. شہر کی بہت بڑی تعداد میں شرکت. سید ظفر علی شاہ نے کہا کہ ہم قرآن پاک کے تحفظ کے لیے اپنا تن من محنت قربان کریں گے. ناروال میں موسلادھار بارش نے جلد ہلیک کر دیا. پرانا کچہری روڈ سمیت شہر کے دیگر نشیبی علاقے زیر آب. گلیاں بازار ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے. ریلوے روڈ، ناروال ظفر روڈ، پرانا ہسپتال روڈ کے سامنے کئی فٹ پر پانی جمع. سڑکوں اور گلیوں میں پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. IRFD کے اثرات. گوزندوں میں مہنگی گندم کے سبب آٹے کا 20 کلو کا تھیلا 100 روپے مہنگا. آٹے کی قیمت میں مزید اضافہ پریشانی کا سبب ہے. شہری ضلع کا احتجاج. کہا کہ حکومت کو چاہیے جلد الیکشن کروائے تاکہ ملک دور سمت میں چل سکے. نارنگ منڈی میں مبینہ پولیس مقابلہ. خطرناک ڈاکو مارا گیا. پولیس اشتہاری عابد کو برآمدگی کے لیے لے جا رہی تھی کہ ملزم کے ساتھیوں نے پولیس وین پر فائرنگ کر دی. ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا. خطرناک ملزم چینی باشندوں کے اغوا برائے تاوان کے مقدمات میں بھی مطلوب تھا. سیالکوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. تھانہ آبو کی پولیس کی بڑی کارروائی. 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث کھیڑو گینگ کے 17 سمیت 4 ملزمان گرفتار. قبضے سے 23 لاکھ سے زائد مالیے کے 11 موٹر سائیکل، نقدی، موبائل فون اور اسلحہ برآمد. DPO سیالکوٹ نے بہترین کارکردگی پر اہلکاروں کو انعام دینے کا اعلان کیا. غوث پور کے قریب کچے میں پولیس کا ڈکیت گینگز کے خلاف سرچ آپریشن جاری. پولیس اور ڈاکوؤں میں فائرنگ کا تبادلہ. پولیس نے ڈاکوؤں کے متعدد ٹھکانوں کو مسمار کر کے آگ لگا دی. آپریشن میں 200 پولیس اہلکار، 70 سے زائد پولیس کمانڈوز شریک. کرم پور کچے کے داخلی اور خارجی راستوں کو سیل کر دیا گیا. SSP عرفان سمو نے کہا کہ آپریشن ڈاکوؤں کے خاتمے تک جاری رہے گا. کراچی میں ہوٹلوں اور دکانوں پر مردہ مرغی کی برآمدی کا سلسلہ نہ تھم سکا. پولیس نے مردہ مرغی سے بھری گاڑی پکڑ لی. ملزمان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا. پنو عاقل میں پیر واں پل لنک روڈ کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. ایک ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار. ڈاکو موٹر سائیکل اسنیچنگ، چوری ڈکیتی، پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین وارداتوں میں مطلوب تھا. ڈاکو کی شناخت زاہد مہر کے نام سے ہوئی ہے. قبضے سے پستول، میگزین اور گولیاں بھی برآمد. سابق آباد میں تھانہ کوٹ سبزی اور تھانہ بھوک کے مشترکہ کارروائی. 8 روز قبل اغوا ہونے والے 2 افراد باسیات اشوک کمار اور ڈرائیور الطاف سولگی کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا. اغوا کاروں نے ملکیوں سے 20 لاکھ تاوان طلب کر رکھا تھا. DPO رضوان کوکل نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیحات میں ہے. السلام علیکم. کوہنور نیوز کے ساتھ میں ہوں احمد بلال اور میں ہوں اقصیٰ خان. ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.
بتائیں کہ اوکاڑا سٹی سرکل میں چوری کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ گلشن فاطمہ کالونی سے چور شہری کا موٹر سائیکل لے اڑے۔ موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز نے موصول کر لی۔ پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں بالکل ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ متاثرہ شہری نے ڈی پی اوکاڑا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتائیں کہ اوکاڑا سٹی سرکل میں چوری کی وارداتوں کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے۔ گلشن فاطمہ کالونی سے چور شہری کا موٹر سائیکل لے اڑے۔ موٹر سائیکل چوری کی سی سی ٹی وی فوٹیج کوہ نور نیوز کو موصول ہو گئی۔ پولیس بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ متاثرہ شہری نے ڈی پی او اوکاڑا سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر فتح چند ڈاکٹر انم فاطمہ نے شہر میں مختلف واٹر فلٹریشن پلانٹس کا دورہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ڈاکٹر انم فاطمہ نے ہدایت کی کہ تمام واٹر پلانٹس پر ایکسپائری تاریخ ڈسپلے کی جائے تاکہ پانی کی شفافیت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بارش کے موسم میں صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ تحصیل روڈ پر نالے کو فوری صاف کرنے کے احکامات بھی جاری کیے گئے۔ اور دوسری جانب سیالکوٹ پولیس کا جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تھانہ اگو کی پولیس کی بڑی کارروائی 50 سے زائد وارداتوں میں ملوث خیلو گینگ کے سرغنہ سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے قبضے سے 23 لاکھ سے زائد مالیت کے 11 موٹر سائیکل، نقدی، موبائل فونز اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او سیالکوٹ نے بہترین کارکردگی پر اہلکاروں کو انعامات دینے کا بھی اعلان کیا ہے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لودھرا میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سید ظفر علی شاہ نے ریلی کی قیادت کی۔ شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سید ظفر علی شاہ نے کہا کہ ہم قرآن پاک کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ انہوں نے حکومت اور عالم اسلام سے مطالبہ کیا کہ وہ عملی طور پر احتجاج کے ساتھ جہاد کا اعلان کرے۔ آپ کو بتائیں کہ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف لودھرا میں جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ سید ظفر علی شاہ نے ریلی کی قیادت کی۔ شہریوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ احتجاجی ریلی کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سید ظفر علی شاہ نے کہا کہ ہم قرآن پاک کے تحفظ کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے۔ انہوں نے حکومت اور عالم اسلام سے مطالبہ کیا کہ وہ عملی طور پر احتجاج کے ساتھ جہاد کا اعلان کرے۔ وہیں دوسری جانب سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف میکلوڈ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا بھی اظہار کیا ہے اور شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ علماء اکرام نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور پاکستان میں سویڈن کے سفارت خانے کو فوری بند کیا جائے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات کو روکا جا سکے۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے کہ سویڈن میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف میکلوڈ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی گئی ہے۔ ریلی کے شرکاء نے سویڈن حکومت کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور شدید نعرے بازی بھی کی۔ علماء کرام نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ سویڈن کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے۔ ناظرین، بلیٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو آگاہ کریں کہ صادق آباد میں تھانہ کوٹ سبزیل اور تھانہ بھونگ کی مشترکہ کارروائی 8 روز قبل اغوا ہونے والے 2 افراد کو بازیاب کروا لیا گیا۔ اشوک کمار اور ڈرائیور الطاف سولنگی کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا تھا۔ اغوا کاروں نے مخفیوں سے 20 لاکھ تاوان بھی طلب کر رکھا تھا۔ ڈی پی او رضوان گوندر نے کہا کہ عوام کی جان و مال کا تحفظ ہماری اولین ترجیح ہے۔ کبڈی ہمارے ملک کا مقبول ترین کھیل ہے۔ ہمارے ملک میں کبڈی کا بہت ٹیلنٹ موجود ہے۔ ساہیوال میں سائیں رب راکھا سرکار کے میلے پر کبڈی ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے بڑی تعداد میں میچ دیکھے۔
शुरका ने कहा कि पाकिस्तान की कबड्डी टीम को आलमी चैंपियन होने का एहसास भी हासिल है। मजीद जानेंगे फहीम सदीकी की रिपोर्ट में। IMF डील के असरात कोट अद्दू में महंगी गंदम के सबब आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए महंगा हो गया। शहरियों ने कहा कि आटे की कीमत में मजीद इजाफा परेशानी का सबब है। हुकूमत को चाहिए जल्द इलेक्शन करवाए ताकि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल सके। मजीद जानेंगे अमीर हमजा से। जी अमीर, बताइए। जी बिल्कुल, IMF से मुआहिदे के बाद हुकूमत की जानिब से जो है आवाम पर यह के बाद दिगरे महंगाई का बम जो है वो गिराया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में जो है 1 रुपया 25 पैसे इजाफे के बाद जो है अब जो आटे का 20 किलो का थैला है उस पर भी जो है तकरीबन 100 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया। यहाँ पे जो है शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। IMF से मुआहिदा जो है वो आवाम को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है, कितनी मुश्किलात होंगी? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF से मुआहदे के बाद ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्लोर मिल्क का कोटा भी बंद कर दिया, जिसके बाद 22 आटे के 20 किलो थैले में 100 से 150 रुपये का इजाफा हो गया है। ठीक है, बिजली के रेटों में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। इसलिए आवाम का फौरी इंतखाबात चाहती है ताकि मुल्क की एक सही सिमत में चल सके। जितनी जल्दी मुल्क में इलेक्शन होंगे हमारे मुल्क का फ़ायदा है। जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि महंगाई के चक्की में पिसी आवाम जो है वो फिलफौर जो इंतखाबात चाहती है ताकि बेहतर सिमत में जो है वो मुल्क चल सके और अच्छे हुक्मरान। बुलेटिन में वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि नारंग मंडी में मुबैना पुलिस मुकाबला खतरनाक डाकू मारा गया। पुलिस इश्तिहारी आबिद को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि आहदिया रोड पर मुलजिम के साथियों ने पुलिस वैन पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। SHO चौधरी लतीफ गुजर ने बताया कि खतरनाक मुलजिम चीनी बाशिंदों के इगवा बराए तावान के मुकदमात में भी मतलूब था। खबर शामिल करें नारोवाल से, जहां मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया। पुराना कचहरी रोड समेत शहर के दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गली बाजार नदे नालों का मंजर पेश करने लगे। रेलवे रोड, नारोवाल जफर रोड, पुराना हस्पताल रोड के सामने कई फुट पानी खड़ा है। सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जी नाज़रीन, आपको बताएं कि नारोवाल में मूसलाधार बारिश ने जल थल एक कर दिया है। पुराना कचहरी रोड समेत शहर के दीगर नशेबी इलाके ज़ेरे-आब आ गए। गली बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रेलवे रोड, नारोवाल जफर रोड, पुराना हस्पताल रोड के सामने कई फीट पानी खड़ा है। सड़कों और गलियों में पानी खड़ा होने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। हालिया बारिश ने मियानी अस्पताल की इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। बारिश के पानी के साथ साथ सीवरेज का गंदा पानी भी अस्पताल में दाखिल। अस्पताल गंदे तालाब में तब्दील हो गए। मरीजों और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में मूजी अमराज फैलने का शदीद खतरा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपको बताया कि हालिया बारिश ने मियानी अस्पताल की इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया है। बारिश के पानी के साथ साथ सीवरेज का गंदा पानी भी अस्पताल में दाखिल है। अस्पताल गंदे तालाब में तब्दील हो चुका है। मरीजों और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ में मूजी अमराज फैलने का शदीद खतरा है। शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
دوسری جانب فقیر والی میں پولیس اہلکار ہی اغوا کار بن گئے. تھانہ فقیر والی کا نکاح تھانے دار SHO سے مل کر شہریوں کو زبردستی اٹھا کر تاوان وصول کرنے لگا. اہلکاروں نے رمضان اویس کو زبردستی اٹھا لیا. وحشیانہ تشدد، لاکھوں روپے رشوت لے کر چھوڑ دیا گیا. مزید جانتے ہیں ارشد علی غوری کی رپورٹ میں. ہارون آباد پولیس سرکل تھانہ فقیر والی میں تعینات تفتیشی افسر اسماعیل محل ڈاکو کا روپ دھار چکا ہے. مذکورہ تفتیشی کو SHO فقیر والی فراز وٹو کی مکمل آشیرواد حاصل ہے. فقیر والی کے شہری رمضان ولد منیر اور اویس غفار ولد غفار احمد کے مطابق اسماعیل محل نے چند کانسٹیبلان کے ہمراہ انہیں 19 والے موڑ سے بنا کسی جرم اور خطا کے گرفتار کیا اور تھانے لے جا کر بند کر دیا. تھانہ فقیر والی میں موجود SHO فراز وٹو اور اسماعیل محل نے باری باری رات بھر تشدد کا نشانہ بنایا اور مختلف مقدمات میں پھنسانے اور پولیس مقابلے میں مارنے کی دھمکیاں دیتے رہے. رات نو اسماعیل محل فراز وٹو تے 3-4 ملازماں نے میرے تے بہت زیادہ تشدد کیتا. ایٹ ٹائم اسماعیل محل تے 3-4 ملازمیناں نے 19 والے موڑ تو گرفتار کیتا. منو تھانے لے گئے تے 27 تاریخ دی رات نو SHO فراز وٹو اسماعیل محل تے 3-4 ملازمیناں نے میرے تے تشدد کیتا. بعد ازاں معززین علاقہ کی مداخلت پر 3 خالی چیک اور مبلغ 23 لاکھ روپے رشوت وصول کر کے چھوڑا. ذرائع کے مطابق اسماعیل محل اور فراز وٹو پہلے بھی اسی طرح مختلف شہریوں سے دھونس اور دھاندلی سے رشوت وصول کرنے میں ملوث ہیں، جبکہ پچھلے دنوں اسماعیل محل نے ایک چھاپے کے دوران ملزموں کو گھر سے کھانے پینے کے سامان سمیت گھر کی ساری جمع پونجی تک لوٹ لی تھی. مذکورہ شہریوں نے ارباب اختیار سے انصاف کی اپیل کی ہے اور فراز وٹو، اسماعیل محل اور ملوث دیگر ملازمین کو قانون کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی غوری، ہارون آباد. ناظرین واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. خالصتان تحریک کتنی فعال ہے؟ کیا اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں ہے خالصتان تحریک کا؟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ. آپ کیا لیتے ہیں کہ اگر میرشپ بن جاتی ہے تو واقعی کراچی کے حالات چینج؟ کراچی نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کو کبھی بہت کم مینڈیٹ دیا اور ابھی اگر ہمارا میئر آتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی ساری میئریوں میں تو میں نہیں کہہ سکتے ہم ختم کر سکتے. تو ایجوکیشن، ہیلتھ اور پانی جو ہے دیہاتی ایریاز میں چیلنج ہے آپ کے لیے؟ ہمارے پاس راول لیک اور اس کے ساتھ ڈیم ہے، ہمارے پاس سملی ڈیم ہے، خانپور ڈیم سے کانٹیکٹ کر کے تھرو پائپ لائن ہم یہاں پہ لے کے آ رہے ہیں. اوورسیز پاکستانی ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے جو باہر پاکستانی ہیں، آپ کی منسٹری کیا کام کرتی ہے؟ جتنی بھی ہماری اوورسیز جو ڈپورٹ ہو جاتے ہیں وہ ہماری GS جو ہے نا جرمن کا ایک پروجیکٹ ہے OPF کے ساتھ، ان کے تھرو ہم ان کو روزگار دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک خاتون چاہے نہیں اور مرد کی ضرورت ہے اس کو بری نظر سے دیکھ دیں؟ مجھے 22 ایئرز ہو گئے پروفیشنل لائف میں آئے ہوئے، مجھے مردوں سے کوئی شکایت نہیں ہے. کسی بھی فارم میں جب ڈی ہیومنائزیشن ہوتی ہے، irrespective آف دا فیکٹ کہ آپ اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن کریں. دیکھیے پروگرام شکایت اتوار کی رات 7 بجے صرف کوہ نور نیوز پر. ویلکم بیک. اکاڑا میں جماعت اسلامی کی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی غوثیہ چوک سے شروع ہو کر گول چوک جا کر اختتام پذیر ہوئی. احتجاج میں تاجر سمیت مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. شرکاء کی سویڈن حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی. مزید جانتے ہیں عدیل رشید کی اس رپورٹ میں. ملک کے دیگر شہروں کی طرح اکاڑا میں بھی جماعت اسلامی اکاڑا کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی. ریلی میں تاجر برادری سمیت مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے شرکت کی. تفصیلات کے مطابق جماعت اسلامی اکاڑا کے زیر اہتمام سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے خلاف ریلی نکالی گئی. ریلی غوثیہ چوک سے شروع ہو کر گول چوک جا کر اختتام پذیر ہو گئی. احتجاجی ریلی میں تاجر برادری سمیت مختلف طبقہ فکر کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. ریلی کے شرکاء نے سویڈن حکومت کے خلاف سخت نعرے بازی کی. شرکاء نے کہا کہ قرآن مجید کی بے حرمتی پر سویڈن حکومت سے سفارتی تعلقات منقطع کیے جائیں اور سویڈن کے سفیر کو فوری ملک بدر کیا جائے.
शुरा ने कहा कि आलमी सतह पर ऐसे इक़दाम उठाए जाने चाहिए कि किसी को कुरान मजीद समेत मुक़द्दस किताबों और अंबिया कराम की तौहीन की जुर्रत ना हो सके। खबर शामिल करें भावलपुर से, जहां थाना कैंट पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस सवार गैंग का सरगना साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान के कब्जे से 9 मोटरसाइकिल, तलाई जेवरात और चोरी शुदा रकम बरामद कर ली गई। डीपीओ का कहना था गैंग के दीगर साथियों के खिलाफ पुलिस ऑपरेशन जारी है, जिनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद पुलिस का गुटखा मैनपुरी बनाने और फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पुलिस का किरण खान शोरूम में मैनपुरी के कारखाने पर छापा, मुलजिम आसिफ मला गिरफ्तार। भारी मिकदार में तैयार शुदा माल, तंबाकू और दीगर सामान बरामद कर लिया। पुलिस टीम ने एक और कार्रवाई लियाकत कॉलोनी में करते हुए 9 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। 800 तैयार शुदा मैनपुरी, 55 किलो खाम माल, 30 किलो तंबाकू, चूना, तंबाकू दीगर सामान पुलिस तहवील में लेकर मुतलका थाना सखी पीर के हवाले कर दिया। कश्मीर में जमात इस्लामी के जेर एहतमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली नादरा चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए प्रेस क्लब पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करना काफिर कुव्वतें की एक सोची समझी साजिश है और इस्लाम के खिलाफ नफरत आम करने की हर कोशिश नाकाम करेंगे। पीडीएम और पीटीआई सियासी रसाकुशी में मसरूफ है, मगर ये वक्त आपस में सियासत करने का नहीं बल्कि दुश्मन इस्लाम को मौसर जवाब देने का है। जी नाज़रीन, आपको अपडेट करें कि कश्मीर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली नादरा चौक से शुरू होकर मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुई। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि कुरान पाक की बेहुरमती करना काफिर कुव्वतों की एक सोची समझी साजिश है और इस्लाम के खिलाफ नफरत आम करने की हर कोशिश नाकाम कर देंगे। पन्नू आकिल में पीरवाह पुल लिंक रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, एक डाकू जख्मी हालत में पकड़ा गया। डाकू मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब था। डाकू की शनाख्त जाहिद मेहर के नाम से हुई है। कब्जे से पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां बरामद कर ली गई। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पन्नू आकिल में पीरवाह पुल लिंक रोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ, एक डाकू जख्मी हालत पर पकड़ा गया है। डाकू मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतादिद संगीन वारदातों में मतलूब था। डाकू की शनाख्त जाहिद मेहर के नाम से हुई है। कब्जे से पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां भी बरामद कर ली गई। हरिपुर तहसील नाजिम समीउल्लाह खान ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिला भर के मुख्तलिफ रोड्स, चौकों, चौराहों, कम्युनिटी सेंटर्स और दीगर सरकारी बिल्डिंग्स को शोहदा के नामों से मंसूब किया जाएगा। शोहदा हरिपुर से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने के लिए इस्लामाबाद में 8 जुलाई को एक बड़े कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। मजीद जानते हैं राशिद महमूद की इस रिपोर्ट में। तहसील नाज़िम समीउल्लाह खान ने कहा है कि शुदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए जिला भर के मुख्तलिफ रोडों, चौकों, चौराहों, TMA के जेर इंतजाम कम्युनिटी सेंटर्स और दीगर सरकारी बिल्डिंग को शुदा के नामों से मंसूब किया जाएगा। शुदा से मोहब्बत व अकीदत का इजहार करने के लिए इस्लामाबाद में जिला कन्वेंशन सेंटर में 8 जुलाई को एक बड़े कन्वेंशन का इनेकाद किया जाएगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने सदर हरिपुर प्रेस क्लब जाकिर हुसैन तनोली के हमरा मीडिया नुमाइंदान से खुसूसी बातचीत करते हुए किया। उनका मजीद कहना था कि पहली बार जिला हरिपुर की तहसील गवर्नमेंट के जेर इंतजाम शुदा हरिपुर की कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करने के लिए इस तरह के प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में हमारे बहुत से गुमनाम हीरोज हैं जिनके बारे में हमारी नई नस्ल आगाह नहीं। हमारी कोशिश है कि जिला भर के मुख्तलिफ रोडों, चौकों, चौराहों, TMA के जेर इंतजाम कम्युनिटी सेंटर और दीगर बिल्डिंग को शुदा के नामों से मंसूब किया जाए। इंशाअल्लाह TMA पार्क की दीवारों पर शुदा हरिपुर की तस्वीर आवाज़ें की जाएंगी। समीउल्लाह खान ने एहलियान हरिपुर से अपील की कि 8 जुलाई के इस्लामाबाद कन्वेंशन में भरपूर शिरकत करके शुदा हरिपुर से अपनी वालियाना मोहब्बत व अकीदत का सबूत दें। राशिद महमूद, कोहिनूर न्यूज़, हरिपुर।
डीपीओ मियांवाली मतीउल्लाह खान से कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर मलिक अमीर अकबर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने डीपीओ मियांवाली को सेहत याबी पर मुबारकबाद दी, गुलदस्ता भी पेश किया। वफ़द में मजहर न्याजी, नवीद आलम न्याजी, मियाँ अहमद हसन, डॉक्टर मजहर हुसैन शामिल थे। डीपीओ मियांवाली ने कहा कि जुर्म चाहे जिसने भी किया इसके लिए कोई माफ़ी नहीं। कुंदिया और हरवाली के एरिया पर फोकस है, उम्मीद है बेहतरी आएगी। आपको बताते चलें कि डीपीओ मियांवाली मतीउल्लाह खान से कुंदिया चश्मा प्रेस क्लब के सदर मलिक अमीर अकबर की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने डीपीओ मियांवाली को सेहतयाबी पर मुबारकबाद भी पेश की है, गुलदस्ता भी पेश किया। वफ़द में मजहर न्यासी, नवीद आलम न्यासी, मियाँ अहमद हसन, डॉक्टर मजहर हुसैन शामिल थे। वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची में होटलों और दुकानों पर मुर्दा मुर्गियों की फराहमी का सिलसिला ना थम सका। पुलिस ने मुर्दा मुर्गियों से भरी गाड़ी पकड़ ली। मजीद जानते हैं नूर अमीन की इस रिपोर्ट में। कराची में होटलों और दुकानों पर मुर्दा मुर्गों की फरहमी का सिलसिला न थम सका। फार्म हाउस से शहर के होटलों और पकवान सेंटर पर मुर्दा मुर्गों की सप्लाई का इंकिशाफ हुआ है। पुलिस के मुताबिक गुलशन नदीद से मुर्दा मुर्गों से भरी 2 सुजुकी गाड़ियां पकड़ी गई। मुर्दा मुर्गों को सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। मलिर गुलशन नदीद के करीब थाना स्टील टाउन ने 2 मुर्दा मुर्गों से भरी गाड़ियां तावील में ले ली। पुलिस के मुताबिक मुर्दा मुर्गों को बोरियों में छुपाकर सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। स्टील टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर और सुजुकी को कब्जे में लेकर मजीद तफ्तीश जारी है। चंद रोज कबल तारापा कॉलोनी से भी मुर्दा मुर्गों से आपको बताएं कि गौसपुर के करीब कच्चे में पुलिस का डिकेट गैंग्स के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और डाकुओं में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को मिसमार करके आग लगा दी। ऑपरेशन में 200 पुलिस एहलकार, 70 से ज्यादा पुलिस कमांडो शरीक हैं। कनकपुर कच्चे के दाखिली और खारजी रास्तों को सील कर दिया गया है। कराची के इलाके सज्जानी टाउन में SHO गहनूर खान की एक ही दिन में 2 दबंग कार्रवाइयां। स्ट्रीट क्रिमिनल को गिरफ्तार कर लिया। फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी तादाद में गुटखा और छालिया बरामद कर लिया। मजीद जानते हैं फौजिया बेग की इस रिपोर्ट में। SHO सुरजानी टाउन की एक ही दिन में 2 दबंग कार्रवाई। एक तरफ SHO सुरजानी ने स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार करके सुरजानी की आवाम को इन स्ट्रीट क्रिमिनल से छुटकारा दिलवाया। वहीं दूसरी जानिब सुरजानी सेक्टर 4D में गुटखा बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़ी तादाद में गुटखा और छालिया बरामद की। फैक्ट्री का मालिक उसामा फरार सुरजानी टाउन में SHO गवर खान की आमद के बाद स्ट्रीट क्रिमिनल्स और गुटखा माफिया के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। SSP डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की हिदायत पर SHO गवर खान ने सरजानी थाने की नफरी को हाई अलर्ट कर दिया। SHO सरजानी का कहना था कि हम सरजानी टाउन को क्रिमिनल से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं और मजीद इस तरह के क्रिमिनल्स को हम कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। सरजानी की आवाम SHO गवर खान महर की इस कार्रवाई से मुतमईन नजर आ रही है। SHO सरजानी का मजीद कह रहा था कि सरजानी में इस तरह के शरपसंद अनासिर से पाक करना और स्ट्रीट क्राइम को खत्म करना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। SHO सरजानी को खुफिया इत्तला मिलते ही नफरी के साथ गैंग का मास्टरमाइंड मोहम्मद जुबैर को अपने साथियों समेत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिमान में मोहम्मद जुबैर वल मोहम्मद रिजवान, इमरान नजीर वल शाहीन मियां समेत मोहम्मद फारूक वल इमरान अली गिरफ्तार। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमान से थाना गुलशन इकबाल से चोरी शुदा कार भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान के खिलाफ ज़ाब्ते के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुलजिमान से थाना गुलशन इकबाल से चोरी शुदा कार भी बरामद कर ली गई। मुलजिमान पर बटा 223 63 बजुर्म 381 A FIR दर्ज की गई है। मुलजिमान मुतादिद थानों में FIR में मतलूब मुलजिमान को मजीद कार्रवाई के लिए AVLC विंग के हवाले कर दिया गया। सखर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पहले इजलास में ही अजब करप्शन की गजब कहानियां सामने आ गई। बरसात के दौरान पानी की निकासी के लिए खती रकम से खरीदी जाने वाली मशीनरी चोरी होने का इंकशाफ हुआ।
लाखों रुपए मालियत की 102 मशीनों में सिर्फ 8 मशीनें वापस मिली, बाकी 94 मशीनें कहाँ गई, कुछ मालूम नहीं। मजीद इस हवाले से जानेंगे यासिर इंसारी की रिपोर्ट में। सगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पहला इजलास नौमुंतखब मेयर बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख की ज़ेर सदारत सगर के ऑडिटोरियम हिल टॉप पर मुनक्किद हुआ। तारुफी इजलास में डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद मुगल समेत पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नौमुंतखब नुमाइंदों, खवातीन, ख्वाजा सरा बल्दिया के अफसरान शरीक हुए। इजलास में नौमुंतखब यूसी चेयरमैनों ने अपना तारुफ कराया और इलाका मकीनों को दरपेश मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ तजावीज़ दी। बल्दिया आला सकर के पहले इजलास में करप्शन के होशरुबा इंकशाफात उस वक्त सामने आए जब इजलास के शुरा को ब्रीफिंग देते हुए इंजीनियर नुमान कलोड़ों ने बताया कि गुज़िश्ता साल बारिशों के दौरान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अमले को 102 मिड पंप फराहम किए गए थे, उनमें से सिर्फ 8 वापस आए, बाकी 94 कहाँ गए कुछ मालूम नहीं। ड्रेनेज स्टेशन पर चोरी रोज का मामूल बन गई है। गैर फाल जनरेटर फाल बनाने के लिए रकम दरकार है, जिस पर मेयर सकर अरसलान शेख ने इंजीनियर पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए सिस्टम को जल्द से जल्द फाल बनाने की हिदायत की कि इंजीनियर साहब आप हंगामी सूरत हाल के लिए 100 मुलाजमीन लेकर बारिश के दौरान सिस्टम चलाने के लिए काम करेंगे। नौजवान मेयर ने 3 रुकनी कमेटी तश्कील देते हुए कहा कि जिन लोगों ने बारिशों के दौरान सामान वापस नहीं दिया उसकी रिपोर्ट पेश की जाए। बारिशों के दौरान सिस्टम को अच्छे अंदाज से चलाने के लिए बल्दिया के तमाम शोबा जात के अफसरान और एहलकारों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी जाए। इजलास से खिताब में नौमुंतखब मेयर अरसलान शेख ने कहा कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 3 टाउन्स में निज़ाम बनाने में कुछ वक्त लगेगा। बारिश के दौरान तमाम अरकान अपने इलाकों में मौजूद ड्रेनेज सिस्टम को चेक। लकी मरवत के नवाही इलाके हमीदाबाद में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग की। फरहाद उर्फ पहलवान मौका पर दम तोड़ गया। फायरिंग के बाद मुलजिमान फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की यूनियन काउंसिल मदीन की काबीना का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। मुशीर वज़ीर आज़म के बेटे अदनान अमीर मकाम ने खसूसी शिरकत की। मजीद जानते हैं मोहतर अली की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रैफिक चौक पर। की बेहुरमती करने पर स्वीडन में जो बेहुरमती हुई है उसके खिलाफ कदीम जामिया मस्जिद काजी वाले से एक रैली निकाली गई जो पीर सलीम शाह की क़यादत में हुई। यहाँ ट्रैफिक चौक पर आकर वो इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर स्वीडन का जो परचम है उसको नजर आतिश किया गया और स्वीडन के खिलाफ और यूरोप के खिलाफ नाराबाजी की गई। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं टांग के मुशरान, आइए उनसे बात करते हैं इस बारे में। हम उसकी बैकाट करेंगे, न कि अपने वतन में घेराव जलाव करेंगे। हम तो वहाँ उस वक्त तक ये हमारा एहतजाज जारी रहेगा जब तक ये स्वीडन जो सफ़ीर है यहाँ पे हुकूमत इसको मुल्क बदर न करे और इसकी मसनूआत का बैकाट न करे। आपको मालूम है कि आज हमारा एहतजाज स्वीडन हुकूमत के खिलाफ है। उसने हमारा कुरान शरीफ को जलाया है। इस पर तमाम मुसलमान गुस्से में हैं और ये एहतजाज इसलिए किया। टांग में पीर सलीम शाह गिलानी की ज़ेर क़यादत कुरान पाक की बेहुरमती करने पर स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन की स्वीडन हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, सफारती बायकॉट का मुतालबा कर दिया। मजीद जानते हैं आदम खान कुंडी की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ट्रैफिक चौक पर। की बेहुरमती करने पर स्वीडन में जो बेहुरमती हुई है उसके खिलाफ कदीम जामिया मस्जिद काजी वाले से एक रैली निकाली गई जो पीर सलीम शाह की क़यादत में हुई। यहाँ ट्रैफिक चौक पर आकर वो इख्तिताम पजीर हुई। यहाँ पर स्वीडन का जो परचम है उसको नजर आतिश किया गया। गैम्बर में वारदातों का ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। जीटी रोड मगदा रोड पर 1 घंटे में डकैती की 2 वारदातें, दुकानदार से नकदी, मोबाइल फोन छीन लिए गए। फरार होते ही डाकुओं की फायरिंग हुई। राहगीर गोली लगने से शदीद जख्मी हो गया।
दूसरी जानिब जैकबाबाद में जमीयत उलमा इस्लाम का स्वीडन वाक़े के खिलाफ शदीद एहतजाजी मुजाहरा शहीद अल्लाह बख्श पार्क से लेकर प्रेस क्लब तक रैली भी निकाली गई। कारकुनान ने बैनर्स और प्ले कार्ड उठाए, शहर का मार्च भी किया। शुरका ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती से मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। कुरान पाक की बेहुरमती करने वालों को सरेआम फांसी दी जाएगी। वाक़े के खिलाफ हुकूमत अपना किरदार अदा करे। सखी सरवर में आवारा कुत्तों की बहतात। मोहल्ला शेखावाला में आवारा कुत्तों के झुरमुट से 2 साला बच्ची पर हमला दबोच कर शदीद जख्मी कर दिया गया। अहले मोहल्ला ने कुत्तों के चुंगल से बच्ची की जान छुड़वाई। तशवीशनाक हालत में डेरा गाजी खान अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतासरा बच्ची के वालिद ने आला हुकाम से बच्ची के इलाज और मुआवजे की अपील कर दी। टंडू शाम के नजदीक गांव में तमाम सहूलियात से महरूम है। 2 माह से सीवरेज का गंदा पानी मस्जिद के सामने जमा है। नमाजियों समेत गांव के रिहायशियों को गुजरने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरी सरापा एहतजाज, कहा कि मस्जिद के सामने गंदा पानी हर वक्त जमा रहता है। नाकाबिले बर्दाश्त ये बात है और गांव में पीने का साफ पानी मुयसर नहीं। गैस और बिजली का बड़ा फुकदान है। सड़कें ना होने की वजह से गांव के रिहायशी अपनी जिंदगी मुश्किल के साथ गुजारने पर मजबूर है। मुजाहिरीन ने वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन से नोटिस लेकर तमाम मसाइल को हल करने का मुतालबा कर दिया। लकी मरवत में दोस्ती से इनकार जुर्म बन गया। फायरिंग से नौजवान अपने वालिद समेत शदीद जख्मी हो गया। फैसल और इमरान को जख्मी हालत में गवर्नमेंट सिटी अस्पताल लकी मरवत मुंतकिल कर दिया गया। वाकया लकी मरवत शहर के मोहल्ला गुलवाली आबाद में पेश आया है। मुलजमान मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। दूसरी जानिब रेनाला खुर्द में चीटी रोड पर डाकुओं की फायरिंग से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। डाकू 3 लाख नकदी लूट कर फरार हो गए हैं। जख्मियों को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की भारी नफरी इत्तला मिलते ही मौका पर पहुंच गई। नाज़रीन, अब आपको बताएं कि IMF डील के असरात कोटद्दू में महंगी गंदम के सबब आटे का 20 किलो का थैला 100 रुपए महंगा हो गया। शहरियों ने कहा कि आटे की कीमत में मजीद इजाफा परेशानी का सबब है। हुकूमत को चाहिए जल्द इलेक्शन करवाए ताकि मुल्क दुरुस्त सिमत में चल सके। मजीद जानते हैं अमीर हमजा से। जी बिल्कुल, IMF से मुआहिदे के बाद हुकूमत की जानिब से जो है आवाम पर एक के बाद दीगरे महंगाई का बम जो है वो गिराया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ जो है बिजली की फ़ी यूनिट कीमत में जो है ₹1.25 इजाफे के बाद जो है अब जो आटे का 20 किलो का तेल है उस पर भी जो है तकरीबन 100 रुपये का जो है वो इजाफा कर दिया। यहाँ पे जो है शहरी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। IMF से मुआहिदा जो है वो आवाम को महंगा पड़ता दिखाई दे रहा है, कितनी मुश्किलात होंगी? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IMF से मुआहिदे के बाद ठीक है, गवर्नमेंट ने फ्लोर मिल्क का कोटा भी बंद कर लिया, जिसके बाद आटे के 20 किलो थैले में 100 से 150 रुपये का इजाफा हो गया है। ठीक है, बिजली के रेटों में भी आए रोज़ इजाफा हो रहा है। आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गई है। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है। इसलिए आवाम का फौरी इंतखाबात चाहती है ताकि मुल्क की एक सही सिमत में चल सके। जितनी जल्दी मुल्क में इलेक्शन होंगे हमारे मुल्क का फ़ायदा है। जी बिल्कुल, शहरी मेरे साथ मौजूद थे, उनकी जानिब से यही कहना है कि महंगाई के चक्की में पिसी आवाम जो है वो फिलफौर जो इंतखाबात चाहती है ताकि बेहतर सिमत में जो है वो मुल्क चल सके और अच्छे हुक्मरान जो है वो मुल्क पर मुसल्लत हों और जी। अब आपको बताएं कि कबड्डी हमारे मुल्क का मकबूल तरीन खेल है। हमारे मुल्क में कबड्डी का बहुत टैलेंट मौजूद है। साहिवाल में साईं रबराखा सरकार के मेले पर कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। शहरियों ने बड़ी तादाद में मैच देखने के लिए शिरकत की। कहा कि पाकिस्तान की कबड्डी टीम को आलमी चैंपियन होने का एजाज भी हासिल है। मजीद जानते हैं फहीम सदीक की इस रिपोर्ट में। कबड्डी पाकिस्तान का मकबूल और इलाकाई खेल है। कबड्डी में कौमी टीम आलमी चैंपियन भी है। साहिवाल शहर से कई नामवर खिलाड़ी कौमी टीम में शामिल हुए।
साहिवाल में साईं रब रखा सरकार के मेले में कबड्डी टूर्नामेंट मुनक्कद करवाया गया, जिसमें 4 टीमों ने हिस्सा लिया और इन टीमों में इलाका भर के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच हड़प्पा और पाकपतन की टीमों के दरमियान हुआ, जिसमें सनसनीखेज मुकाबले के बाद हड़प्पा की टीम ने कामयाबी हासिल की। आखिर में मेहमान खुसूसी ने जीतने वाली टीम को विनर ट्रॉफी दी और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में इनामत भी तकसीम किए गए। कैमरामैन जैद के साथ फहीम सिद्दीकी, कोहिनूर न्यूज, साहिवाल। लेस्को की सब डिवीजन जीओआर की नाअहली 3 रोज से बिजली गायब। एसई सेकंड सर्कल के 12 कहने पर एसडीओ जीओआर का काम करने से इनकार। दूसरी जानिब बारिश की वजह से इस्माइल नगर मस्तीगेट के इलाकों में करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन बगबानपुरा के सब डिवीजन महबूब बूटी के हदूद में अराजी जंजुआ गांव में 12 दिन से बिजली गायब है। एक्सीन बगबानपुरा का गलत बयानिया आला अफसरान को देकर बिजली दुरुस्त करवा दी गई। जी बिल्कुल, आपको आम खबर से आगाह करें कि लेस्को की सब डिवीजन जीओआर की नाअहली है। 3 रोज से बिजली गायब है। एसई सेकंड सर्कल के 12 कहने पर एसटीओ जीओआर काम करने से इनकारी है। दूसरी जानिब बारिश की वजह से इस्माइल नगर मस्तीगेट के इलाकों में करंट लगने के वाकयात में 2 अफराद जान की बाजी हार गए। ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन बागबानपुरा के सब डिवीजन महमूद बूटी की हदूद में अरासी जंजुआ गांव में 12 दिन से बिजली गायब है। एक्सीएन बागबानपुरा का गलत बयानिया आला अफसरान को देकर बिजली दुरुस्त करवा दी गई है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे खसूसी मुबशिर अली जंजुआ से। जी मुबशिर, अपडेट कीजिए। ऐसी सेकंड सर्कल जो चौधरी मोहम्मद रशीद हैं, उनके बारहा कहने के बावजूद जीओआर सब डिवीजन की जानिब से कोहिनूर न्यूज़ चैनल के हेड ऑफिस की लाइट को दुरुस्त नहीं किया जा रहा। मुतद्दिद बार जो है ऐसी सेकंड सर्कल उनको आगाह कर चुके हैं कि चैनल की लाइट को दुरुस्त करो। वो टाल मटोल करके जो भी लाइनमैन आता है या जो भी अहलकार आता है, वो बजाय बिजली की दुरुस्तगी करने की बजाय वो आगे से कहानियाँ सुनाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानिब जो इराजी जंजुआ गांव है, बगबानपुरा डिवीज़न की महमूद बूटी सब डिवीज़न है, जहां पर ये बिजली का जो मामला है ईद से 1 रोज़ पहले का है। मुतद्दिद बार वहां पर भी ऐसी ईस्टर्न सर्कल जो वहां पे हैं, उन्होंने मुतद्दिद बार एक्शन को भी कहा है, एसडीओ को भी कहा है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं। अहले इलाका सरापा एहतजाज हैं। दोनों जानिब से जो है ना, इस पर हमने मौक़िफ़ लेने की कोशिश भी की है चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, तो उनका कहना था कि मैं इस पे एक्शन करवाता हूं और जो कार्रवाई मुमकिन हुई वो करूंगा, लेकिन उसके बावजूद अभी तक यहाँ पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशिर हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद अपडेट्स और खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।